Okay, good morning. Chalo. Welcome back. Buyback. Now see, what was the homework in last lecture? I've given, I suppose, home assignment 3 to 6. Yes. Check the answer for home assignment 3 to 6. Okay, check the answer for home assignment question number 3 to 6. Sorry, 3 to 6. Bank to investment to profit. Profit ultimately can be transferred to P&L account, or you can directly pass over here for P&L. Equity share premium. Premium will be transferred to security premium account. And 450 will be, you can say equity share buyback. बैंक से हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है. Or we are supposed to create the CRR, that is the face value. That is the face value of equity share bought back. General reserve P&L. Then after, in this sum also there is a bonus. So after buyback, we are supposed to calculate the bonus. And amount of bonus is 225, which we can use it from CRR. CRR will be our first preference when buyback is in a form of type 1. Type 1 means additional shares in a form of, bonus is in a form of type 1. Bonus means additional shares are the bonus. Okay. And if you prepare the balance sheet schedule 3 format, see here, there is old here. So we need to change that thing. Property, plant, equipment. बस बाकी चीज है. 3251 will be your total of the balance sheet. Is there any doubt in question number 3? Or shall we go ahead? Okay. Next, question number 4. Same thing, but over here, redemption of preference share is also given. So we have sold investment, preference redemption, security premium used in premium on redemption of preference shares. But now we cannot use the security premium, so we are supposed to use the free reserve. We are supposed to use the free reserve. Okay, that I have taught you in preference redemption. For premium on redemption of preferences, we are going to always use the free reserve. Okay, बस बाकी ठीक है. Balance sheet total आएगा 22,300. Amount transfer to CRR will be 3,700. Okay. See, अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है. Without any hesitation, you can ask me doubt at any point of time. So don't worry, and you can ask the doubt. Okay. 5. Question 5. Question 5. Okay. Again, that is same set of entries like, see here, buyback is routed through security premium or equity share buyback, bank, general reserve, created CRR, and then bonus. See here, they have given a strict mark. Why? Because we do not have the bank balance sufficient. So we are considering that way कि हमारे पास भले ही बैलेंस ना हो, बट हमने बैंक ओडी से पेमेंट कर दिया. सो अल्टीमेटली यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने को प्रिपेयर करने को नहीं बोला है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, 85,000 विल बी योर बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, नो इश्यूज. क्वेश्चन 6, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगेन रिडम्पशन. अगेन प्रीमियम रिडम्पशन में यहाँ पे जो भी दिया हुआ, वी आर सपोज टू यूज द फ्री रिजर्व, और यू कैन से जनरल रिजर्व, बिकॉज ये सारे पुराने आंसर्स है. आरटीपी नवंबर 13, राइट. सो बाकी ठीक है सब कुछ. यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक, बैंक लोन. सी हियर, लोन टेकन टू फाइनेंस द बायबैक, देन बैंक टू बैंक लोन विल कम, एंड CRR 18,000. सो अभी ये 4 क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है तो बताइए.
Home assignment question 3, 4, 5, 6. No doubt? No doubt. Okay. And we will be back to our class work. Just a minute. Okay. Now see, I will see homework is very must in my lecture. Mute yourself. Okay. If you have any doubt, you can ask me a question. Yes. The illustration 4 with homework lesson. Class work now. Okay. Yes. Illustration 4 is also there. Illustration 4, yes. So, in this case, we have resource outstanding, resource test, share outstanding test. So, मैंने कहा था कि बोनस आपको इंक्लूड करना है. इन्होंने जानबूझ के आपको बोनस सेपरेट दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ. बट वहां पे हमें 1,35,000 शेयर्स लेने हैं. तो टेस्ट आएगा 25%, 33750. रिसोर्स टेस्ट में पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व टोटल आएगा 40312. सो अभी ये 40312 33750. अभी लास्ट टेस्ट डेट इक्विटी 2:1. तो डेट में इतना काउंट करना है 1875, 10, 60, 50, 1 लाख एंड 2 लाख. और मैंने आपको डेट नोट डाउन करके भी बताया था कि ये सब में हम कौन कौन से डेट कंसिडर करेंगे. ठीक है. और मिनिमम इक्विटी इतना आएगा. अभी इसका डिफरेंस लीजिए. अभी ये जो डिफरेंस है यहाँ पे सारा जो कैलकुलेशन करते हैं वो ऐसे एक्स वाई एज्यूम करके करते हैं. पर मैंने आपको शॉर्टकट बताया. शॉर्टकट बताने से पहले मैंने आपको लॉजिक समझाया था. ठीक है. जो लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा लेक्चर उस पे लिया था. तो वो लॉजिक से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. इसका जो डिफरेंस है इसमें बायबैक प्राइस क्या है 20 रुपीज. तो हमें 30 से डिवाइड करना पड़ेगा. यस. ये डिफरेंस को आप 30 से डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएगा नंबर्स. तो कितने नंबर्स आएंगे 27083. तो अभी ये तीनों टेस्ट में मिनिमम क्या है 27083. सो दैट इज विद इन द लिमिट. यस, यू कैन बाय बैक 25,000 shares. Okay, then we are supposed to pass entry for 25,000 shares. That will remain same entry, right? And then we are supposed to prepare the balance sheet. Total of the balance sheet will be 81,50,000. Okay, is that clear? No need to do this XY formula. और मैंने आपको जो लॉजिक समझाया था कि CRR will not be forming part of your free reserve. ये 69.1, 69.2 का जो नोट दिया है वही लॉजिक पे हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में. ठीक है. ओके, दैट्स इट फॉर होमवर्क. शैल वी गो अहेड नाउ विद द क्लास वर्क एग्जांपल नंबर 5. चलो अब डिफरेंट सिचुएशन वाला सम से जिसमें डेट डिफरेंट देते हैं तो हमें क्या करना है देखिए. चलिए. नारंग लिमिटेड has the following structure as on 31st March 12. Equity share capital shares of 10 is fully paid up 1980. Reserve surplus general reserve 1440 free है. हाँ, security premium, profit and loss. Infrastructure development reserve नेम से ही पता चल जाता है ये फ्री नहीं है. हमें ये कंसिडर नहीं करना है. ओके. Or loan funds is nothing but your debt. Yes. Shareholder of Naran on recommendation of their board of director approved on 2nd September proposal to buy back minimum permissible number of equity shares. Sorry. Maximum. See, maximum permissible. अभी
ये सब में आपको ये नहीं बताया है कि कितने शेयर्स हमें बॉट बैक करने हैं। ये बोलते चलो मैक्सिमम कितना हम बायबैक कर सकते हैं, हमें पूरा का पूरा बायबैक करना है। ओके, मैक्सिमम हम कितना बायबैक कर सकते हैं। द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर इज 25 पर शेयर इन ऑर्डर टू इंड्यूस। अभी जो ये सारा जो सेंटेंस है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप शांति से समझना, ठीक है। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, अभी इस शेयर की अभी करंट एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस 25, बट हमें बायबैक में ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर बायबैक के लिए आपको बताइए, इसीलिए टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, क्या आप ज्यादा से ज्यादा बायबैक कर सके, ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक डिसाइडेड टू हैव प्राइस 20% ओवर द मार्केट प्राइस। मतलब ये मार्केट प्राइस 25 है, उसमें 20% हम ज्यादा ऑफर करेंगे। यस, वी विल ऑफर मोर, so now buyback price will be 30। तो हमें बायबैक प्राइस क्या कंसीडर करना है, 30। 25 को इग्नोर करो, जस्ट टू कंफ्यूज दैट इज गिवन 25। वी आर सपोज टू कंसीडर ओनली 30 रुपीज। ओके, ठीक है। यू आर इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। ओके, तो आपने नहीं बताया फिर भी हम ऐसे ही करेंगे, डोंट वरी, वी हैव नॉट कंसीडर दैट। ओके, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, हमें पता है, हमें पता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो अभी आपको क्या करना है, इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक क्या है, और दूसरी सिचुएशन भी दी गई है। कौन कौन सी दी है, वेयर लोन फंड्स ऑफ अ कंपनी वेयर आइदर 7200 lakhs और 9000। अभी क्या है, ये सिचुएशन 1 है। ओके, अभी सिचुएशन 2 में क्या दिया है कि अगर लोन फंड्स 7200 है तो बायबैक क्या होगा। अगर थर्ड सिचुएशन, अगर लोन फंड्स 9000 lakhs है तो बायबैक क्या आएगा। तो ये तीनों सिचुएशन में हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। Okay. Assuming that entire buyback is completed on 9th December, show the accounting entries full narration of companies in each situation. हमें तीनों सिचुएशन में एंट्रीज करनी है, अगर बायबैक आता है तो, ठीक है। चलिए, तो अभी हम तीनों सिचुएशन देखेंगे। अभी मैंने देखा है स्टूडेंट क्या करेंगे कि तीनों सिचुएशन में तीनों टेस्ट काउंट करेंगे। तीनों सिचुएशन में तीनों टेस्ट काउंट करने की जरूरत तब होगी जब तीनों टेस्ट के जो कंटेंट है उसमें चेंज आता होगा। अभी देखिए, हमारा जो टेस्ट है उसमें हम पहले से टेस्ट क्या करते हैं, रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अभी देखिए, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व में ये तीनों सिचुएशन में कुछ चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे आपको बताया, सिचुएशन 2 में शेयर कैपिटल अलग हो जाएगी, सिचुएशन 3 में रिजर्व्स अलग हो जाएगी। नहीं, ये तीनों सिचुएशन सिर्फ ओनली डेट के लिए है, ठीक है। सो ओवर हियर ओनली थर्ड टेस्ट विल चेंज इन ऑल द 3 सिचुएशन, फर्स्ट और सेकेंड टेस्ट विल रिमेन सेम। यस, तो भी क्या करते हैं हम, टेस्ट 1 करते हैं, रिसोर्स टेस्ट। ओके, रिसोर्स टेस्ट। तो ये रिसोर्स टेस्ट में हमें क्या करना है, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कितनी है, रुपीज इन लैक्स। ओके, 1980। उसमें हम ऐड करेंगे फ्री रिजर्व्स, बोले तो फ्री रिजर्व ही लेने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं लेने, ठीक है। चलो, तो उसमें आएंगे जनरल रिजर्व 1440, सिक्योरिटीज प्रीमियम 540 and P&L account 540. Give me the total of all, paid up capital plus free reserves, total of all 4,500. 4,500. सो अभी क्या आएगा, मैक्सिमम
maximum amount of buyback will be 25%. ओके, तो 25% मैक्सिमम बायबैक आएगा, कितना आएगा? वन 125, उसको 30 बायबैक प्राइस से डिवाइड कीजिए। 1125 विल बी योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। उसको बायबैक प्राइस क्या हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे 30। ओके, 30 से डिवाइड कीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 37.5। ओके, तो दैट इज 37.5 लाख। सो उसको राउंड ऑफ मत कीजिएगा, 38 राउंडेड ऑफ। ओके, रुपीज इन लैक्स है तो ऑब्वियसली शेयर्स भी लैक्स में हो गए, ठीक है। तो 37.5 लाख शेयर्स टू बी बॉट बैक। ओके, दैट इज द आंसर ऑफ टेस्ट 1। अभी टेस्ट 2 करते हैं। टेस्ट नंबर 2, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? फेस वैल्यू 10 है, सो 198 lakhs number of shares of rupees 10 each. Okay, so number of shares 198 lakhs है। ओके, तो उसका 25% करो। चलो मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 25%। तो आंसर क्या आएगा? So 49.5 लाख शेयर्स। तो अभी ये जो दो टेस्ट है वो तो हमने चेक कर लिया, सेटिस्फाई हो रहे हैं। यस, चलो ठीक है, मतलब हमें मैक्सिमम ही करना है। अभी ये देखिए, ये जो तीनों सिचुएशन है, तीनों की तीनों सिचुएशन में हमें डेट हो वो चेंज हो रहा है। ओके, आउटसाइड लायबिलिटीज चेंज हो रही है। तो 10,800, 7,200 एंड 9,000। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी आर सपोज टू हैव टेस्ट नंबर 3 इन 3 सिचुएशन। अभी ये खास ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हम एक टेबल बनाएंगे तीनों सिचुएशन के लिए, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ओके, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3। ओके, अभी ये तीनों सिचुएशन में चेंज क्या हो रहा है? That obviously, so that is 10,800, 7,000, 7,200 and 9,000। तो अभी हम टेस्ट 3 जैसे करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। अगर डेट 2 है तो इक्विटी 1 आएंगे, तो वो जो आएगी वो आएगी प्रपोज्ड इक्विटी, मतलब फ्यूचर इक्विटी, और यू कैन से मिनिमम इक्विटी। इतनी तो इक्विटी चाहिए ही मिनिमम, 5,400, 3,600, 4,500। इज इट? हाँ, आप कर दीजिए। अभी प्रेजेंट इक्विटी क्या है? सी, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो प्रेजेंट इक्विटी है वो क्या है? तो प्रेजेंट इक्विटी हमने यहां पे कैलकुलेट किया 4,500 है। प्रेजेंट इक्विटी हमने कैलकुलेट किया क्या है सर? तो ये फ्री रिजर्व इक्विटी में काउंट नहीं होगी। फॉर द पर्पज ऑफ टेस्ट नंबर 1 एंड 3, फॉर द पर्पज ऑफ बायबैक हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस कंसीडर होंगे, ठीक है, बट यहां पे कंसीडर नहीं होंगे टेस्ट 1 और टेस्ट 3 में। तो प्रेजेंट इक्विटी 4,500 है, 4,500 है, 4,500 है। नाउ सी, रिडक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन कैसे करते हैं? कौन से फिगर में से कौन सा फिगर में माइनस करता हूं? कैन यू टेल मी? हमने यहां पे कैलकुलेट किया था अभी, रिडक्शन कितना कर सकते हो आप? मैक्सिमम रिडक्शन आप कितना कर सकते हो? तो हम उसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट इक्विटी में से प्रपोज को माइनस करेंगे, तो यहां पे तो नेगेटिव आ जाता है, नॉट पॉसिबल।
सी अभी देखिए हमारी प्रेजेंट इक्विटी ही 4500 है, आपको बोला गया बायबैक के बाद, बायबैक आफ्टर बायबैक डेट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। अरे अभी प्रेजेंट में ही 2:1 से ज्यादा है। देखिए ये है डेट, ये है इक्विटी। अभी आप रेशियो काउंट कीजिए कितना है, रेशियो काउंट कीजिए कितना है, मोर देन 2। तो आप बायबैक की तो बात ही मत की, ठीक है। अगर आपका डेट 10,800 है तो आप बायबैक भूल ही जाइए, क्योंकि जो प्रपोज इक्विटी है वो प्रेजेंट से ज्यादा है, तो आप बायबैक तो कर ही नहीं सकते। अगर आपको 2:1 करना है तो इश्यू करना पड़ेगा, तो आप बायबैक तो भूल ही जाइए। समझ में आया कुछ? अभी यहां देखिए सिचुएशन 3 में, अभी यहां देखिए सिचुएशन 3 में क्या होता है कि भाई प्रपोज इक्विटी 4500 है, तो 4500 है, वहां पे 2:1 आएगा, और यहां पे प्रेजेंट भी 4500 है, तो बायबैक क्या कर सकते हो आप? नील बायबैक क्या, अरे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन 3 में रेशियो आएगा 2:1, तो 2:1 से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में हम टेस्ट 3 है उसमें तो कोई बायबैक पॉसिबल नहीं है। हाँ, सिचुएशन 2 में पॉसिबल है। कैसे? तो हमारी प्रेजेंट इक्विटी है 4500, हमारी प्रेजेंट इक्विटी है 4500 और डेट कम है, इसलिए प्रपोज इक्विटी कम आ रही है। तो वी कैन रिड्यूस आवर प्रेजेंट इक्विटी टू प्रपोज, तो ये मैक्सिमम रिडक्शन आएगा 900। ये समझ में आया सबको? यही किया था हमने पहले भी। देखिए ये सम नंबर 3 है, उसमें हमने क्या किया था कि ये तुम्हारा डेट है, 2:1 में प्रपोज इक्विटी आएगा, और यहां पे हमारी प्रेजेंट इक्विटी है 3125। तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना आएगा? तो प्रेजेंट इक्विटी में से आप प्रपोज्ड माइनस कीजिए, ठीक है, तो आएगा 8,62,500। यस, तो अभी यहां पे हम क्या करेंगे? सिचुएशन 1 ने हमने ट्राई की कि भाई प्रेजेंट में से माइनस करो, अरे माइनस आ रहे हैं, ठीक है, इग्नोर इट। यहां पे माइनस कीजिए, नील 0, तो वी इग्नोर कीजिए। यहां पे हाँ 900 आ रहे हैं। अब समझ में आया सबको? अब इतना क्लियर है? तो ये 900 में हमें दोनों को सेटिस्फाई करना है। किन किन लोग को सेटिस्फाई करना है भाई? तो देखिए ये जो डिफरेंस है उसमें हमें बायबैक प्राइस को भी सेटिस्फाई करना है और अमाउंट ऑफ सीआरआर को भी सेटिस्फाई करना है। ओके, तो हमारी बायबैक प्राइस क्या है? हमारी बायबैक प्राइस क्या है और बायबैक की अमाउंट क्या होगी? तो भैया 30 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर्स लेट इट बी एक्स, और अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर होगा फेस वैल्यू इंटू एक्स, तो टोटल हो गए 40x। तो 40 से डिवाइड कीजिए तो वो आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पे तो नील आएगा, यहां पे भी नील आएगा। तो अगर 40 से डिवाइड कीजिए, 900 को 40 से डिवाइड कीजिए, चलिए 900 को 40 से डिवाइड कीजिए, चलिए 22.5, that will be a maximum number of shares to be bought back by situation number 2। क्लियर है? इज दिस क्लियर? सिचुएशन 1 और सिचुएशन 3 में क्यों नहीं हमने बायबैक किया? क्योंकि एनीवे अभी भी 2:1 ही हो गए हैं या 2:1 से ज्यादा है, ठीक है, तो देयर इज नो स्कोप फॉर रिडक्शन। इतना समझ में आ गया? तीनों की तीनों टेस्ट। तो हमें यही नहीं करना है सिचुएशन 1 टेस्ट 1 2 3, सिचुएशन 2 टेस्ट 1 2 3, सिचुएशन 3 टेस्ट 1 2 3। अरे क्यों टाइम पास कर रहे हैं? टेस्ट 1 और टेस्ट 2, एक बार ऐसा हो, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो फिर पेपर में मैंने चेक किया तो एक स्टूडेंट ने क्या दिया था
Situation 1, test 1, test 2, test 3, whichever is lower. Situation 2, test 1, test 2, test 3, whichever is lower. तो ऐसा नहीं करना है, क्यों टाइम पास करते हो? ठीक है, टेस्ट 1 में कोई चेंज नहीं है, तीनों सिचुएशन में टेस्ट 1 सेम रहेगा, टेस्ट 2 में कोई नहीं है, तीनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा। तो अगेन एंड अगेन यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट इट, राइट? हाँ, कुछ चेंज हो रहा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, तीनों सिचुएशन में कंपेयर करते हैं मैक्सिमम बायबैक क्या है। ओके, तीनों सिचुएशन में कंपेयर करते हैं मैक्सिमम बायबैक क्या है, क्योंकि उस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भी तीनों सिचुएशन में जितना भी मैक्सिमम बायबैक आता है वो आप बायबैक कीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक, सिचुएशन 1, 2, 3। तो अभी क्या आएगा, जो भी टेस्ट है 1, 2 एंड 3, ये टेस्ट में से जो भी लोवेस्ट आएगा, ओके लिस्ट, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट 1 तो तीनों सिचुएशन के लिए कॉमन ही है, यस यस यस। टेस्ट नंबर 2 भी कॉमन ही है हाँ, यहाँ पे नील, यहाँ पे नील, 22.5। तो लोवेस्ट आएगा नील, तो ये बायबैक नॉट पॉसिबल, नील नॉट पॉसिबल, 22.5। इन शॉर्ट you can buy back maximum 22.5 lakh shares in situation 2। और हमें एंट्री भी ये 22.5 की पास करनी है। अभी एंट्री आपको पता है, ठीक है, वो एंट्री आप पास कर लेना। ओके, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी एंट्रीज की है, ठीक है, तो अभी एंट्री कर लेना। पहले ये नोट डाउन की, फिर हमें क्या करना है, वी आर सपोज टू पास दी एंट्री, एट यू कैन डू इट, बट ये आप नोट डाउन की। पहले कोई डाउट है इस सम में तो पूछ लीजिए, चलिए। कोई डाउट? कोई डाउट मत रखना। ओके, चलिए टेस्ट 1।
साथ में एंट्री भी पास कर देना। हेलो सर। यस, सर उसमें बोला था ना कि मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम हमारा 49.5 होगा। नहीं मैक्सिमम, सी मैक्सिमम मतलब क्या है, ये मैक्सिमम ही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। एक्चुअली मैक्सिमम मतलब क्या कि जो कंपनीज एक्ट है उसमें हमें जो रिस्ट्रिक्शन दिए हैं टेस्ट 1, 2 और 3 के द्वारा, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शन आप सेटिस्फाई करके मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम बोला है तो ऐसा मतलब है नहीं, ये नहीं है कि चलो ये तीनों टेस्ट में से जो हाईएस्ट है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक्ट में क्या बोला है कि आप टेस्ट 1 या टेस्ट 2 या टेस्ट 3 से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक क्या है, लिस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक क्या है, लिस्ट ऑफ दी अबोव, लिस्ट ऑफ दी अबोव मीन्स ये सारे के सारी जो सिचुएशन है, सारी की सारी जो टेस्ट है, उसमें से जो लोवेस्ट नंबर ऑफ शेयर्स आएगा वो होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं मैक्सिमम नंबर। अभी अभी आपको समझाता हूं। अभी हमने सम 3 देखा, ठीक है, उसमें टेस्ट 1 39, टेस्ट 2 31,250 एंड टेस्ट 3 28,750। तो अभी ये तीनों में से जो लोवेस्ट है 28,750 अकॉर्डिंग टू एक्ट वो आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। आप 28,750 से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। हाँ, इसमें आपने एक्चुअली बायबैक कितना किया 25, तो वो 25 इज एक्चुअल बायबैक। बट अगर आपको बोला गया हो इस क्वेश्चन में क्या कि आप 25,000 भूल जाओ, अगर थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा गया हो कि भाई मैक्सिमम आप कितना शेयर बायबैक कर सकते हो उतना बायबैक कीजिए, ठीक है, तो क्या होगा 28,750। नॉट मैक्सिमम इज नॉट इन द सेंस दैट हाईएस्ट ऑफ द टेस्ट। ये तीनों टेस्ट इसीलिए दिए गए हैं कि ये टेस्ट में आएगा मैक्सिमम, ये सारे के सारे मैक्सिमम नंबर ही है, ठीक है, बट तीनों टेस्ट हमें सेटिस्फाई करनी है। तो तीनों टेस्ट में जो लोवेस्ट फिगर आएगा, तीनों टेस्ट में जो लोवेस्ट फिगर आएगा वो होगा हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। क्लियर? ओके, एनी अदर डाउट? तो एंट्रीज क्या आएगी इसकी, चलिए देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, यहां पे एंट्रीज बोली गई है, ठीक है, तो हम ये एंट्रीज कर देंगे। 22.5 is the maximum number of shares to be bought back. Buyback price 30 है, premium 20 और 10 rupees will be the face value. Okay, so equity share security premium to equity share buyback, equity share buyback to bank and general reserve to CRR. तो ये 3 एंट्रीज आएंगी। Is that clear? Okay, shall we go ahead then? चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, उसमें क्या चेंज, कुछ नया है।
कुछ खास नहीं है इस सम में। चलिए सेम ही है, इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री नहीं है, लोन फंड्स 1800 है। फिर बोलेंगे 25 पर शेयर मार्केट प्राइस है, बट उसको इंड्यूस करने के लिए 20% ज्यादा देंगे, बायबैक प्राइस 30 होगी। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं इन सिचुएशन में। और अगर आपका डेट 1800 से 1200 करोड़ है या फिर 1500 करोड़ है, तो ये तीनों सिचुएशन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स क्या है वो देखना है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन डू दिस इन होमवर्क। अगर सिमिलर सिचुएशन है, सिर्फ फिगर चेंज हो रहे हैं, तो कई स्टूडेंट क्या देंगे, अरे ये तो सेम ही है, सिर्फ फिगर ही चेंज किए हैं। प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आपको ये सारे के सारे सम कैलकुलेट आपकी बुक में करने हैं। ओके, क्योंकि आप जितना अनसोल्व सम को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ब्रेन शार्प होता जाएगा। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा से वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यू कैन से इन अ लॉन्गर मेमोरी। यस, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, कई बार 4 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ एक ही टेस्ट आपको पूछी है। चलो अभी ये आपको यहां पे करना है क्वेश्चन। प्रथम, नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इक्विटी कैपिटल 30 लाख, सो 3 लाख नंबर्स, ओके, ऑफ 10 ईच। जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पेनल, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री नहीं है, लोन फंड 42 लाख है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दैट इक्विटी रेशियो टेस्ट। अभी देखिए क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट and the maximum number of shares that can be in light of our information when the offer price for buyback is 30. Okay, when the offer for buyback price is 30. चलिए ये मुझे डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट कैलकुलेट करके नंबर ऑफ शेयर्स बताइए कितने होंगे। गो अहेड। यहां पे आपको 4 मार्क्स में सिर्फ टेस्ट नंबर 3 ही पूछा है, तो आपको अभी टेस्ट 3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे चाहिए नंबर, मैक्सिमम नंबर कितने होंगे बायबैक के। तो सर वो मैक्सिमम नंबर देने के लिए 1 और 2 ट्रू, बट यहाँ पे कई कौन सी सेंस पूछी है कि आप टेस्ट 3 का ही मतलब स्पेसिफाई किया है कि टेस्ट 3 ही कैलकुलेट की, और टेस्ट 3 के लिए जो मैक्सिमम है वो कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली 4 मार्क में आपको तीनों के तीनों टेस्ट नहीं पूछेंगे। फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सजेस्टेड में टेस्ट 3 दिया है, और यहाँ पे भी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टेस्ट 3 पूछा है इसीलिए।
चलो हो गया। Yes, sir. Give me the number of shares under. 5,000. Sorry. 5,625. नहीं, इतना नहीं आ रहा है। टेस्ट 3 लोन फंड्स क्या है? वेरी सिंपल, 42 लाख। लोन फंड्स 42 लाख है। अभी टेस्ट 3 कैलकुलेट कीजिए, ठीक है? तो फिर उसमें लोन फंड्स और हमें चाहिए प्रपोज्ड इक्विटी। प्रपोज्ड इक्विटी, तो प्रपोज्ड इक्विटी क्या होगा? 2:1, तो 21 लाख। गिव मी द प्रेजेंट इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी काउंट किया है आपने? प्रेजेंट इक्विटी कितना है? तो प्रेजेंट इक्विटी में ये 30 लाख, शेयर कैपिटल 30 लाख, जनरल रिजर्व 3250, सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख एंड P&L अकाउंट इज इट 430। चलिए बताइए कितना है? 72,000. तो अभी रिडक्शन कीजिए 72 में से 21 लाख। कितना रिडक्शन होगा? मैक्सिमम रिडक्शन 51,80,000. 51,80,000। ओके, 5180 क्लियर है। अभी क्या करेंगे? बायबैक प्राइस क्या है? 30। ऑफर फॉर बायबैक इज 30, फेस वैल्यू 10, 30x प्लस इसके 2 बाइफर्केशन आएंगे, ठीक है? एक आएगा बायबैक अमाउंट, एक आएगा CRR। ये लॉजिक मैंने सारा लेक्चर 2 में समझाया आपको। 10x 40x से डिवाइड कीजिए। चलिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे बायबैक के लिए? 95,000. 12 लाख। 10 ज्यादा नहीं चढ़ा दिया? नो इश्यूज, होता है ये हमें देखना है। ये जो मिस्टेक है ना, यहाँ पे कर लो आप, जितनी भी कर सकते हो, एग्जाम में नहीं चाहिए। 1,29,500। तो दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वाइड टेस्ट नंबर 3। यहाँ पे क्या है? हमें 4 मार्क में इतना ही देंगे ना हम, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक as per the above information or as per the above test, means by considering that equity ratio test number 3 कितना बायबैक आएगा? तो टेस्ट 3 का हमने कैलकुलेशन दे दिया। तो बायबैक आएगा मैक्सिमम टेस्ट 3 के लिए 1,29,500। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए। और ये जो मैं आपको शॉर्टकट का मैंने लॉजिक भी समझा था लेक्चर 2 में, ठीक है? सारे का सारा यहाँ पे देखिए, वो XY की फॉर्मूला करते हैं, वही लॉजिक वही है, बट कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है? ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 हमने जो किया उसका वो डिफरेंस लेते हैं। तो मैंने लॉजिक यही अप्लाई किया है। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई x है, y है, तो y टू एज्यूम x, y एंड ऑल एंड इक्वेशंस आप करते हो, क्योंकि ये 5180 का जो डिफरेंस आया है, ये जो 5180 का जो डिफरेंस आया है, मुझे इतना पता है, मुझे 2 लोगों को सेटिस्फाई करना है। ये डिफरेंस एक आएगी बायबैक अमाउंट, एक आएगा CRR।
तो ये लोग क्या करते हैं, बायबैक अमाउंट को एक्स एज्यूम करते हैं, सीआरआर को वाई एज्यूम करते हैं। मैंने क्या किया, दोनों को एक्स ही एज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे पता है क्या कि ये जो नंबर्स है उसमें बायबैक अमाउंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स को 30 से मल्टीप्लाई करो तो बायबैक आ जाएंगे, और जो सीआरआर है उसके जो नंबर्स है शेयर्स बायबैक के नंबर्स, उसको मैं फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10x आ जाएगा। तो why to have x and y when you can have x both and solve it easily? yes, चलिए क्लियर है, ओके। चलो अभी प्रैक्टिस थोड़ी हमें करनी है। यस, एग्जाम्पल नंबर 8 वो भी देख लेते हैं। न्यू सिलेबस में 19 में क्वेश्चन पूछा गया था, फॉलोइंग इज ए समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सुपर लिमिटेड वाज ऑन 31st March 8। पेड अप कैपिटल है 17 लाख 10 each means 1,70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। आपको नंबर लिखने में क्या जाता है। रेवेन्यू रिजर्व्स ओके फ्री है, सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल, इंफ्रास्ट्रक्चर तू भाई जा, तू फ्री नहीं है तू जा। Secured loans 9%, debenture unsecured loans, current maturities of long term, total debt आ जाएगा, give me the total amount of debt, okay, tangible current, okay, no issues। Super Limited wants to buy back 35,000 equity shares of 10 each fully paid up at rupees 30, तो 30 rupees is our buyback price, face value is 10 and company wants to buy back। सर टेस्ट करना है नहीं करना है, या सिर्फ एंट्री पास करनी है, wants to buy back and we are supposed to check it। Buyback is fully authorized by article, necessary resolution has been passed, payment is also made out of sufficient bank balance available। See, बाकी की सारी जो कंडीशन है वो हम सेट करके बैठे हैं, ठीक है। आप इतना बता दीजिए टेस्ट 1, 2 और 3 ये जो है वो आप सेटिस्फाई कर दीजिए, फिर हम 35,000 शेयर्स बायबैक कर देते। बाकी हमने सारा तामझाम करके बैठे हैं, ठीक है, कि बायबैक के लिए वी आर रेडी। जस्ट आपको टेस्ट 1, 2, 3 चेक करना है। कमेंट विथ योर कैलकुलेशन, बायबैक इज विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। जब ये पूछा है तो हमें टेस्ट 1, 2 और 3 कैलकुलेट करने हैं। सर इसमें एंट्रीज या बैलेंस शीट पास करनी है या नहीं करनी है, जितना आपको पूछा गया इतना ही आंसर देना है, ओके। हमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है। आपको पूछा है यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, पूछा है जनरल एंट्रीज बना प्रिपेयर कीजिए, बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो फिर ज्यादा डोड डाया नहीं होने का, ठीक है। चलिए ओके, नंबर ऑफ शेयर्स टेस्ट 1, रिसोर्स टेस्ट काफी इजी है, ये भी आपको करना। चलिए मैं करवा देता हूं। पेड अप कैपिटल, सो पेड अप कैपिटल विल बी 17 लाख। Free reserves, revenue 2350, security premium 250, and P&L 2 lakh। चलो give me the total of paid up capital and free reserve। 45 lakhs। 45 lakhs, 25% of it, $11,25,000 divided by buyback price,
30, 37,500. ये 37.5 जैसा नहीं लग रहा है ये ऐसा ही कुछ है. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स. नो इश्यूज. चलो टेस्ट 2 शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट. यस, तो नंबर्स कितने हैं? 170. उसका 25% कर दीजिए. चलिए सिंपल. हाँ, अभी ये लिख लो. टेस्ट 3 आपको दोबारा कैलकुलेट करना है. चलिए टेस्ट 3 कैलकुलेट कीजिए. अभी यहां मुझे कोई गलती या मिस्टेक नहीं चाहिए. ठीक है, पहले ये टेस्ट 1 और 2 नोट डाउन कीजिए. टेस्ट 3 कैलकुलेट करके बताइए. हाँ, Test 3 में 54,375 आता है. 54,375 numbers. Yes, correct. 54,375. Test number 3. So 42,500, 37,500 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 40 कर देना है हमें. ठीक है, ओके. अगेन दैट इज एज पर मॉड्यूल. We'll present it differently. Okay. So total of the total debt, प्रपोज इक्विटी. प्रेजेंट में से प्रपोज हम माइनस करेंगे. प्रेजेंट में से हम प्रपोज्ड माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्रेजेंट इक्विटी 45 है, उसमें से ये माइनस कीजिए. क्या आएगा? मैक्सिमम परमिटेड बायबैक. ये डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस 21 लाख divided by 40. 54,375. Is that clear? सो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक कितना आएगा? टेस्ट 1, 2, 3. हर बार टेस्ट 3 ही कम आए जरूरी नहीं है ना. ठीक है,
37,500 maximum number of buyback. Yes. Okay, lowest list of the above 37,500. अभी ये तीनों टेस्ट क्लियर है, पक्का एकदम क्लियर है? ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 अभी बाकी रखिए, ठीक है। 11 में जो राइट इश्यू आता है, राइट इश्यू भी हम कंसेप्ट करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, चलिए। न्यू सिलेबस नवंबर 15 में एक क्वेश्चन पूछा था, अगेन 15 मार्क्स। अभी देखिए जुलाई 21 में भी 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, बट वो क्वेश्चन की आप साइज देखिए और ये क्वेश्चन की साइज देखिए। दिस न्यू सिलेबस नवंबर 19 question, new syllabus November 19 question is really very nice. Okay, see over here they have asked buyback को फाइनेंस करने के लिए हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं। अभी वो टेस्ट 1, 2, 3 भूल जाइए, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी बायबैक कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये नहीं पूछते क्वेश्चन में कि बायबैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज नॉट आस्क्ड। बायबैक तो हम कर लेंगे, आप एंट्री बताइए। तो एंट्री पूछिए, उसमें डिबेंचर इश्यू किए, प्रेफरेंस इश्यू किए, इन्वेस्टमेंट सेल किए, रेवेन्यू रिजर्व का बैलेंस रखना है और बोनस भी दिए, ठीक है। कितने सा, मतलब ऐसा आप समझ लो कि बायबैक में जितने सारे टेस्ट के अलावा जितने सारे एडजस्टमेंट आते हैं, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कलेक्टिवली आपको दिए हैं। बायबैक, प्रेफरेंस रिडेम्पशन, डिबेंचर इश्यू, क्रिएशन ऑफ सीआरआर एंड बोनस, एवरीथिंग इज गिवन। और वो भी रेवेन्यू रिजर्व में फिर 2 लाख आपको मेंटेन भी करने हैं, तो आपको थोड़े बहुत रिजर्व के रिस्ट्रिक्शन भी दिए हैं कि रिजर्व इतना यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल करके आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है, प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो भी ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। दिस क्वेश्चन डिजर्व 15 मार्क, परफेक्टली डिजर्व 15 मार्क, ओके, परफेक्टली डिजर्व द क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। तो अच्छा वाला क्वेश्चन है, देखिए। अभी यहां पे हम टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बायबैक तो उन्होंने कर लिया है, ओके। चलिए बट यहां पे क्या होगा, बैलेंस शीट बनाने में वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको ये क्वेश्चन में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है, एंट्रीज भी पास करनी है और वर्किंग भी करना है, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 each, fully paid up 50 lakh and 10,000 10% preference shares of 100 each. Hold on. या ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, सी सबसे पहले यहां पे जो फेस वैल्यू दी है हमें वो है 20। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, ओके फेस वैल्यू 10 ही होगी। अरे 10 क्यों होगी भाई, ऑलवेज 10 होना जरूरी है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि फेस वैल्यू क्या दी है, और इन्होंने फेस वैल्यू 20 दी है। तो अभी कई सारे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, देखते भी नहीं है, ओके 50 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 5 लाख, क्या 5 लाख, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 2,50,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो अभी आपको सारे सेंसेस ओपन रखने हैं, ठीक है। चलिए
60 lakhs. कैपिटल रिजर्व 1 लाख. सिक्योरिटी प्रीमियम, अरे कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करना है. सिक्योरिटी रेवेन्यू पीएनएल, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यूज नहीं. अभी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यूज करना है. अगर आपको बताया डिफॉल्ट है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, नहीं यूज करना है. बट अगर आपको बोला है कि इतना ही यूज करना है, इतना आप यूज कर सकते हो, ओके. डिबेंचर एंड करंट लायबिलिटीज, वी हैव टेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एंड बैंक. चलिए वन बाय वन एंट्रीज देखते हैं. बाय बैक 25% ऑफ पेड अप कैपिटल डिसाइडेड टू ऑफर 20% ओवर मार्केट प्राइस. और मार्केट प्राइस है 30, अभी 30 का 20% ओवर कर दीजिए तो बायबैक प्राइस आ जाएगा 36 रुपीज. बायबैक प्राइस विल बी 30. से ये कौन सी प्राइस है, ऐसी ऑकवर्ड प्राइस कौन देता है भाई. ओके ठीक है, चलिए 36. टू फाइनेंस द बायबैक ऑफ शेयर, issue 3000 14% debenture of 100 each at a premium of 20% and 2500 10% debenture of 100 each. Sale investment worth rupees 1 lakh for 150. Maintain balance revenue reserve में हमें 2 लाख तो मेंटेन करने ही है, तो यहाँ पे 5 लाख है तो 2 लाख तो मेंटेन करने ही है. मतलब हम यूटिलाइज कितना कर सकते हैं, ये 5 लाख में से हम यूटिलाइज कितना कर सकते हैं, 3 लाख ओनली भाई. ओके. लेटर द कंपनी इश्यू, हाँ अभी बोनस आपने इश्यू किया है वो लेटर देखेंगे. अभी पहले बायबैक तो कर लीजिए, ठीक है. चलो बायबैक के लिए हमें वो चार्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम एंट्रीज पास कर रहे हैं. हमारा जो बायबैक वाला चार्ट है, यस बायबैक चार्ट, कितना बायबैक करना है, कितना बायबैक करना है 25%. अभी जो जानबूझ के उन्होंने 25% ऑफ बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स दिए, क्यों. अगर आप यहां पे 50 लाख का फेस वैल्यू 10 एज्यूम कर लेते हो देखे बिना ही, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 25%, दैट्स इट, 0 मार्क. ये एक छोटी सी गलती आपको 15 से सीधा 0 में ले जाए. आर यू गेटिंग दिस. तो आपको दिमाग की बत्ती जलाने के लिए, चलो नंबर्स कितने होंगे, 22 250 250 का 25% ऑफ नंबर्स 250. चलिए बताइए कितना होगा 25%. 6,25,000. नंबर्स आप नंबर से बताइए. 62,500. हाँ 62,500 नंबर्स आए इतने. अभी ये जो बायबैक अमाउंट है वो है 36. यहाँ पे सारी की सारी ऑकवर्ड अमाउंट दी है. 36 में से 20 फेस वैल्यू, 16 प्रीमियम. अभी देखिए टोटल अमाउंट कीजिए कितना है. टोटल बायबैक अमाउंट 2,50,000. यस 22,50,000. तो वो जो 22,50,000 है उसके हम दो बाइफर्केशन करेंगे. फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट बैक कितने आएंगे, 62.8 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 20. प्रीमियम ऑन बायबैक, 62.8 इंटू 16. ये क्वेश्चन में कई सारे स्टूडेंट ने यहां पे ही लोचा किया था, ठीक है. चलिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे हम यहाँ पे. यस कितना यूज करेंगे, कितनी अमाउंट आएगी, बाइफरकेट करके बताइए मुझे. 2250 का तो बाइफरकेशन. ओके तो यहाँ पे आएगा 1250
और यहाँ पे आएगा 10 लाख। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? 1250 उसको हम बाइफरकेट करेंगे। भाई प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए कुछ? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इश्यूड, हाँ किए हैं। कितने किए हैं भाई प्रेफरेंस शेयर इश्यू? कितने किए हैं प्रेफरेंस शेयर? किए हैं 2500 ऑफ 100 ईच, 2500 ऑफ 100 ईच, 2500 ऑफ 100 ईच, 250 ईच। सर डिबेंचर भी इश्यू किए, डिबेंचर भी इश्यू किए तो माइनस करना पड़ेगा क्या? डिबेंचर भी इश्यू किए तो डिबेंचर माइनस करना पड़ेगा क्या सीआरआर के लिए? 69(1) क्या बोलता है? 69(1) क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इश्यूड शेयर्स। क्यों? मैंने आपको लॉजिक पहले लेक्चर में समझाया था, याद है? ये लॉजिक क्या है सीआरआर का? लॉजिक 69(1) में जो सीआरआर का लॉजिक दिया है वो क्या है? सीआरआर का लॉजिक सिर्फ इतना है कि आप जो नोट नंबर 1 बनाते हो, शेयर कैपिटल जो आपकी परमानेंट कैपिटल है वो इंटैक्ट कितनी रहनी चाहिए। तो अभी डिबेंचर कहां से शेयर कैपिटल में आता है? नहीं आता है। तो डिबेंचर का कुछ लेना देना नहीं है यहां सीआरआर से। सीआरआर से डिबेंचर का कोई लेना देना नहीं है। डिबेंचर इश्यू करे ना करे क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज डिबेंचर शेयर नहीं है। ओके, डिबेंचर इज जस्ट द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो वो हमें कंसीडर नहीं करना है फॉर द पर्पज ऑफ सीआरआर। फॉर द पर्पज ऑफ सीआरआर हमें शेयर ही कंसीडर करने हैं। कई सारे स्टूडेंट यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं, डिबेंचर माइनस करके सीआरआर क्रिएट करके आता है। डिबेंचर क्या, डिबेंचर क्या, शेयर, डिफरेंस नहीं पता चलता आपको क्या? चलिए सीआरआर, तो सीआरआर हो गए 10 लाख रुपीज। यस, तो ये चार्ट क्लियर है आपको, और ये 10 लाख का भी हम यूज कहां से करेंगे वो भी बता देते हैं। चलिए, क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन दिए भी रेवेन्यू रिजर्व 2 लाख मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, चलिए तो आपको 2 लाख मेंटेन करवा देते हैं हम। रेवेन्यू में से सिर्फ 3 लाख ही यूज करेंगे, तो फिर बाकी के 7 लाख कहां से आएंगे भाई? यहाँ पे पीएनएल है, इनफ है। यस, तो पीएनएल ले लेंगे हम 7 लाख। तो सोर्सिंग भी मैंने आपको बता दिया चार्ट में। अभी इतना क्लियर है? ओके, सो चलो ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज। यहां पे हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चलिए बनाइए जर्नल। नरेशन आपको लिखना है। ओके, हम नरेशन में अभी मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, तो अभी नरेशन में हम टाइम पास नहीं करेंगे, बट आपको कंपलसरी नरेशन तो लिखना ही लिखना है। यस, चलिए डेट तो नहीं है, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। चलिए फर्स्ट एंट्री, अभी 1 बाय 1 हम एंट्री करते हैं। डेट नहीं दी है तो 1 2 3 4 लिखेंगे। बायबैक, ओके बायबैक। चलिए बायबैक के लिए हमने क्या क्या किया? पहले बायबैक की जो 3-4 एंट्री है वो लास्ट में करते हैं। पहले बायबैक के लिए हमने जो टर्म्स एंड कंडीशन किया है वो हम सेटिस्फाई कर लेते हैं। बायबैक के लिए हमने क्या किया? बायबैक के लिए हमने डिबेंचर इश्यू किए। बायबैक की सारी एंट्री हम लास्ट में कर लेंगे। पहले आप बायबैक के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं, वो सारी एंट्री पास कर देते हैं। ओके, फिर बायबैक एंड लास्ट में बोनस। बोनस लास्ट में आएगा ना, क्योंकि यहां लिखा है लेटर द कंपनी इश्यूड फुल्ली पेड अप शेयर्स, मतलब बायबैक हो जाए फिर बाद में कंपनी ने बोनस इश्यू किया। ठीक है, चलिए तो अभी डिबेंचर इश्यू किया 20% प्रीमियम से, एंट्री पास कीजिए। कितना कितना आएगा? 3100 इज 3 लाख, उसमें 20% प्रीमियम 360, बैंक में आएगा 360। यस, बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू 14% डिबेंचर एट फेस वैल्यू। ओके, 3 लाख, और जो प्रीमियम आए हैं हम वो ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 60।
अभी देखिए, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक वर्किंग नोट 1 बना देते हैं रिजर्व सरप्लस वाला, ठीक है। उसमें हम सारी की सारी रिजर्व सरप्लस लिख देंगे, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट में दी गई है। कैपिटल रिजर्व कौन लिखता है भाई? कैपिटल रिजर्व का यूज क्या है भाई? कुछ यूज नहीं है, ओके, उसका कुछ यूज नहीं है, तो फिर नो इश्यूज। चलिए, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 रिजर्व्स, ओके, रिजर्व्स में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, हमारा जो ऑर्डर है वही हम ऑर्डर लेंगे। ये ऑर्डर इसीलिए क्योंकि मुझे पता है मुझे बोनस का ऑर्डर कौन सा चाहिए, ठीक है। तो देन आफ्टर सिक्योरिटी प्रीमियम, देन आफ्टर रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल अकाउंट। अभी जो इसके अलावा जो जो रिजर्व है, जो स्पेशल काइंड ऑफ रिजर्व है, वो हम देख लेते हैं। तो स्पेशल काइंड ऑफ रिजर्व देख लेते हैं क्या क्या है। कैपिटल रिजर्व है और डिविडेंड इक्वलाइजेशन है। चलिए, रिजर्व की अमाउंट दे दीजिए मुझे, सीआरआर कुछ है नहीं, यहाँ पे हम एडलेस करेंगे और फाइनली बैलेंस आ जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 12 लाख है सिक्योरिटी प्रीमियम, 12 लाख। रेवेन्यू रिजर्व क्या है? 5 लाख, रेवेन्यू रिजर्व 5 लाख। पीएनएल 20 लाख, कैपिटल रिजर्व 1 लाख और डिविडेंड इक्वलाइजेशन 550। तो ये रिजर्व है। हमने फर्स्ट एंट्री जो पास की, अभी क्या है साथ में ही हम करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने 60 पास की, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में प्लस 60 लिख दूंगा। जैसे मुझे बोनस करने उसकी सारी टोटल रिजर्व चाहिए कितनी है, ठीक है, इसीलिए। चलिए, तो नाउ आई हैव पास द एंट्री फॉर दिस। नाउ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए, प्रेफरेंस शेयर इश्यू की भी एंट्री हम पास कर देते हैं। नरेशन आप लिख लेना, 2 में एंट्रीज आएगी। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे हम प्रेफरेंस एप्लीकेशन एंड ऑल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं एंट्री, ओके, ठीक है। 250 टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके, इट्स 250। इज दैट क्लियर? ओके। थर्ड वन चलिए, क्या है? इन्वेस्टमेंट हमने सेल किए, हाँ, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट 150 में सेल किए, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट जाएगा पीएनएल में। तो हमने 150 में इन्वेस्टमेंट सेल किए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कैन से 1 लाख। तो 50,000 का प्रॉफिट आया जो हमने ट्रांसफर किया, कहां पे ट्रांसफर किया? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो यहाँ पे पीएनएल में हम +50 कर देंगे, बोलिए यस। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आ रहा है, ठीक है। रिजर्व मेंटेन करना है 2 लाख, ओके, तो वो तो मैंने यहाँ पे मेंटेन कर भी लिया है, ठीक है। तो अभी मैं बायबैक करूंगा, ठीक है, अभी मैं बायबैक की जो भी एंट्रीज है वो पास करूंगा। चलिए, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? बोनस। लास्ट में हम क्या करेंगे? बोनस। तो पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अभी ये कहां से डेबिट होगा? तो फेस वैल्यू, प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होगा और टोटल बायबैक अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1250, प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन बायबैक यूज कीजिए या डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कीजिए। पहले बताइए आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख का है या फिर हमें फ्री रिजर्व यूज करनी है? नहीं भाई, 10 लाख है हमारे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख है हमारे पास, तो यूज कर दीजिए भाई, ओके, टू इक्विटी शेयर बायबैक। इज दैट क्लियर? एम आई गोइंग फास्ट और ओके है स्पीड? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं?
or I need to decrease my speed? Yes or no? Hello. Yes. Yes sir, perfect है. Okay, perfect. Good. अभी नेक्स्ट एंट्री आएगी. सी, हमने ये बायबैक का ड्यू पास कर दिया, प्रेफरेंस इश्यू कर दिए, तो अभी सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा हमें. यस. फिर हम बैंक से पेमेंट करेंगे. यस. सीआरआर क्रिएट करने के लिए हमें रेवेन्यू रिजर्व 2 लाख का मेंटेन करना है बैलेंस, so we can use revenue reserve for 3 lakh only. Yes. चलिए, तो फिर पास द एंट्री फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर. सर सीआरआर में 10 लाख ही क्यों क्रिएट करना है? फेस वैल्यू तो 1250 है, बट हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिए. और सीआरआर में 69(1) में, सेक्शन 69(1) में लिखा है सीआरआर इज इक्वल्स टू व्हाट? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक माइनस फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इश्यूड. तो हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए 250, फेस वैल्यू ऑफ ब्रॉड बैक 1250, तो आएगा 10 लाख. और 10 लाख का सोर्सिंग भी मैंने बता दिया है आपको. रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, सो दैट इज 3 लाख रुपीज. P&L अकाउंट डेबिट 7 लाख. टू कैपिटल रिडम्पशन reserve 10 lakh. Is that clear? Okay. तो फिर उसको बैंक से पेमेंट कर दीजिए. सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है एंड बैंक बैलेंस हमारे पास बहुत सारी पड़ी है, इसीलिए तो हम बायबैक करते हैं. चलिए, तो बैंक बैलेंस हमारे पास, यस, कैश एंड बैंक है ही 15,75,000. चलिए, क्लियर. तो बायबैक हो गया. अभी बायबैक हो गया तो अभी रिजर्व्स में हम प्लस माइनस कर देते हैं. रेवेन्यू कितनी यूज कर ली हमने? 3 लाख. पीएनएल कितना यूज कर लिया? 7 लाख. ये तो यूज करना ही नहीं है. ओके, चलिए, तो अभी मुझे बैलेंस दीजिए. बैलेंस सीआरआर कितना क्रिएट किया हमने? सीआरआर 10 लाख क्रिएट किया. तो अभी बैलेंस, ये बैलेंस क्यों चाहिए? अरे बोनस के लिए चाहिए. बैलेंस क्यों चाहिए? बोनस के लिए चाहिए ना 10 लाख, क्योंकि हमें पता चले कौन कौन सी रिजर्व हम यूज करेंगे. आफ्टर बायबैक रिजर्व का मेरे पास बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मैं जो बोनस इश्यू करूंगा ये वही बैलेंस में से इश्यू कर सकता हूं. ठीक है, तो यहां पे आएगा 260. 2 लाख. ये बैलेंस तो मेंटेन करना ही करना है. यहाँ पे 1350. ये 1 लाख और 550 तो भूल जाओ. आपको बताया यूज कीजिए तो कीजिए, वरना डिफॉल्ट हम यूज नहीं करेंगे. तो इतना क्लियर है. सर ये वर्किंग क्यों करते हो? ये वर्किंग इसीलिए करते हैं हम, क्योंकि जब हमें बोनस इश्यू करना पड़े तब हम ये रिजर्व्स में से बोनस इश्यू कर सके. और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो नोट नंबर 2 में ये फिगर डायरेक्टली ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्किंग बना दिया है. ठीक है, तो ये बोनस के जो फिगर्स है उसमें माइनस करके सीधा वर्किंग नोट नंबर 2 में चला जाएगा. यस. चलिए, अभी बोनस कितना होगा? बोनस कितना होगा तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे वर्किंग शो करता हूं. ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि अभी नंबर ऑफ बोनस इश्यू, अभी जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स थे 250. उसमें से हमने बाय बैक कितना कर लिया? बाय बैक कितना कर लिया? 62,500. हमने बाय बैक कितना कर लिया? 62,500. तो अभी बताइए मुझे, चलिए, रिमेनिंग शेयर्स कितने आएंगे? 187,500. तो बोनस कितना करना है हमें? बोनस कितना करना है क्या बताया आपको? कंपनी इश्यू 333 fully paid up shares of 20 each by way of bonus for
एवरी 15 3/15, तो ऐसे बताइए ना कि 5 के सामने एक बोनस शेयर्स देना है। ठीक है, चलिए तो बोनस शेयर्स आएंगे, कितने आएंगे भाई? 3 शेयर्स देने हैं अगेंस्ट 15, 3 शेयर्स देने हैं अगेंस्ट 15 और उसकी फेस वैल्यू है 20। नंबर्स बताइए चलिए मुझे। 37,500 और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 20 है, तो फिर अमाउंट कितना होगा? ऑब्वियसली 750। यस, तो अभी 750 का बोनस, तो 750 तो हम सीआरआर में से ही ले लेंगे। यस, तो अभी 750 यूज कर लोगे तो बैलेंस शीट में सीआरआर 250 आएगा और बैलेंस शीट में ये सारे रिजर्व ऐसे ही आएंगे। तो अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें जो नोट नंबर 2 है उसमें सीआरआर 250 लिखना है, बाकी सारे रिजर्व एज इट इज है। वी कैन यूज दिस फॉर नोट नंबर 2। यस, चलिए अभी बोनस की एंट्री कर देते हैं हम। ओके, बोनस में हम यूज करेंगे CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 750 222, बोनस टू इक्विटी शेयर 750 और बोनस टू इक्विटी शेयर बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये पूरी हुई हमारी एंट्रीज यहां पे। एज आई सेड ये सम थोड़ा लेंदी है, ये परफेक्टली 15 मार्क्स डिजर्व करता है, परफेक्टली करता है। ठीक है, और अच्छा सा क्वेश्चन था। अभी यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है आपको, मैंने बैलेंस शीट पहले ही सिखा दिया था आपको, तो अभी बैलेंस शीट आप होमवर्क में कर सकते हो। यस, अगर कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा इसका, तो नॉट वरी। बट अभी आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसकी जो बैलेंस शीट है वो होमवर्क में है। बैलेंस शीट में आपको क्या ध्यान रखना है, बायबैक का जो शेयर्स है वो तो हमने माइनस कर दिया है, बोनस का ऐड कर देना। प्रेफरेंस शेयर में हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए, ऐड करना मत भूलना। रिजर्व्स का तो पूरी की पूरी वर्किंग नोट 1 दी है और डिबेंचर भी हमने इश्यू किया है, ऐड हो गए। और यहाँ पे आपको बैंक बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इश्यू भी करते हैं, बायबैक भी करते हैं, तो वो जो बैंक बैलेंस है उसका भी हमें वर्किंग करना पड़ेगा। यस, ओके, ठीक है, तो वो हम बैलेंस शीट के साथ करेंगे। कैसे करेंगे आप देख लीजिए। अगर आपको बैलेंस शीट में कुछ भी दिक्कत है, डू नॉट वरी एट ऑल, वी विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ नोट डाउन दिस थिंग्स। ओके, चलिए डोंट लीव। ओके, अभी मैं होमवर्क भी आपको बताऊंगा, सिर्फ बैलेंस शीट ये सम की होमवर्क में नहीं है, होम असाइनमेंट में से भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। यस, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, अगर आपको कुछ बाकी रह जाता है तो आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट विल बी दी होमवर्क नाउ टुडे? यस, चलिए नोट डाउन कीजिए होमवर्क। होम असाइनमेंट, question number, home assignment question number 7, question number 8, तो ये दोनों होम असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, क्लियर है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।